we have talked about the lag phase, and the lag phase is the phase of the tooling up. And in this phase, we discussed that microorganisms, they prepare themselves for the rapid phase of growth that is coming after the lag phase, and this is termed as the exponential phase. यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन फ्लोट किया था, और क्वेश्चन क्लास के एंड पे पूछता हूँ. अभी थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं. Exponential phase is the phase that is after the lag phase, and exponential phase is also called the log phase, and this is the phase which is termed as the phase of the constant cell division, and actually this is the phase in which we measure the generation time. At the start of this chapter, we talked about that microorganisms, they have different generation times. For example, in the case of E. coli, generation time was 20 minutes, and in the case of Mycobacterium, the generation time was 12 hours. So here it is clear that where we need to measure the generation time is the phase which is called exponential phase, because देखिए generation time हमने पढ़ा था कि generation time is the time that is between two adjacent cell divisions. तो एडजेसेंट सेल डिविजन्स में के दरमियान जो टाइम है उसको हम बेहतर मेजर तभी कर सकते हैं व्हेन द सेल्स आर ग्रोइंग नॉर्मली, सेल्स आर ग्रोइंग रैपिडली. अगर सेल्स रैपिडली ग्रो नहीं कर रहे, अपने आप को लैग फेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या स्टेशनरी फेज आ गई है, तो उस फेज में हम जो जनरेशन टाइम मेजर करेंगे दैट वुड नॉट बी द एक्चुअल टाइम. इस वजह से द एक्सपोनेंशियल फेज इज द फेज इन विच वी मेजर द जनरेशन टाइम. अब जो एक्सपोनेंशियल फेज है, वी हैव आल्सो कैटेगराइज्ड इनटू सम सब फेजेस. एक्सपोनेंशियल फेज का एक पार्ट है, उसको हम कहते हैं जी इनिशियल लॉग फेज, and the other part of the exponential phase that is termed as late log phase. ठीक है, एक है initial log phase, दूसरा है late log phase. अब इन दोनों में डिफरेंस है, दोनों में जो सेल में जो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होती हैं दोनों में डिफरेंस है. फॉर एग्जांपल, initial log phase is the phase in which the cell biomass is being prepared, amino acids and nucleotides are being synthesized. और उसके साथ साथ जो लेट लॉग फेज है, लेट लॉग फेज में चूंकि अगर आप इस ग्राफ पे दोबारा आते हैं वापस, तो यहाँ पे देखें ये वाला जो पोर्शन है अप टू दिस पोर्शन विल बी टर्म्ड एज इनिशियल लॉग फेज, और जो ये पोर्शन है इसको मैं कहूँगा द लेट लॉग फेज. अब इनिशियल लॉग फेज में क्या है कि सेल बायोमास बन रहा है, अमाइनो एसिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स बन रहे हैं विच आर रिक्वायर्ड बाय द सेल फॉर द रैपिड ग्रोथ. एंड in the late log phase, what is happening in the late log phase, actually the nutrients are going to deplete. Now here at this point, cell will feel that nutrients are going to deplete. They are not depleted. I am using the word that they are going to deplete in future, in near future, and cell will feel that the nutrients are going to deplete. Cell अब इसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करेगा, एंड द सेल का रिस्पॉन्स क्या होगा? सेल वुड हंकर डाउन इट्स मेटाबॉलिज्म. हंकर डाउन का मतलब है स्लो डाउन. सेल, चूंकि आप देखते हैं यहाँ पे सेल बहुत तेजी के साथ डिवाइड कर रहा था, उसका मेटाबॉलिज्म उतना ही तेज था. अब जब सेल को फील हुआ कि भाई अब न्यूट्रिएंट्स कम हो रहे हैं, तो सेल यहाँ पे अपना मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन करेगा और स्पोरुलेशन स्टार्ट करेगा. हमने चैप्टर 3 के एंड पे पढ़ा था स्पोरुलेशन का प्रोसेस. Sporulation is a process in which when cells form the spores when the conditions are unfavorable, when the nutrients are depleted. तो यहाँ पे late log phase में basically sporulation start हो जाएगी. और ये फ़र्क है initial log phase का और late log phase का. इसके अलावा log phase के अंदर बहुत सारे metabolites बनते हैं, metabolites. अच्छा, मुझे ये बताइए कि is there any idea to you what is the metabolite? What are the metabolites? मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, कोई बता सकता है? Voluntarily, anyone. What are the metabolites? Metabolites. Anyone? जो केमिकल मेटाबॉलिज्म कैरी आउट करते हैं. जी सॉरी, फिर से. सर जो केमिकल्स मेटाबॉलिज्म को कैरी करते हैं उन केमिकल्स को मेटाबोलाइट्स कहते हैं. ओके, एनीवन एल्स? मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? इनके अलावा कोई बता सकता? मेटाबॉलिक पाथवेज में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, मतलब रिएक्शंस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक इंटरमीडिएट्स हम कह सकते हैं. आई थिंक ये होते हैं मेटाबोलाइट. दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट आया. एनीवन एल्स? सर जो मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होते हैं. ओके, एनीवन एल्स? ओके, the metabolites are basically the products of the metabolism. Metabolism के result में actually जो products बन रहे हैं हमारे पास, these are termed as the metabolites.
and these metabolites may be categorized into two classes. One are the primary metabolites and one are the secondary metabolites. अब यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, दोनों का डिफरेंस मैं आपको बताने लगा हूँ. Primary metabolites are the metabolites which form during the normal growth of the microorganisms. मिसाल के तौर पे यहाँ पे बैक्टीरिया जो है नॉर्मली ग्रो कर रहे हैं इस लॉग फेज में. इस लॉग फेज में मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में जो साइड प्रोडक्ट्स बन रही हैं, जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं, they would be termed as metabolites and primary metabolites. The metabolites which are required by the bacteria, which are produced by the bacteria during the normal phase of growth, primary metabolites. दूसरी यहाँ पे टर्म इस्तेमाल हुई है secondary metabolites. Secondary metabolites are the metabolites which form when the bacterial cells are in stress condition. Secondary metabolites are the metabolites which form when the bacterial cells are in the stress conditions. They do not form during the natural or the normal phase of the growth. They form during the stress conditions, secondary metabolite. अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक ग्राफ और दिखाऊं, इस ग्राफ में अगर आप फोकस करें, इस ग्राफ के y एक्सिस पे नंबर ऑफ वायबल सेल्स हैं, x एक्सिस पे टाइम है, ये जो ब्लू लाइन है दिस इज शोइंग द ग्रोथ फेज, बिल्कुल वही ग्रोथ फेज जो हम पीछे देख के आए हैं, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज. द रेड लाइन, दिस रेड लाइन इज एक्चुअली शोइंग द सिंथेसिस ऑफ द मेटाबोलाइट्स. ये सेकंड y एक्सिस है. यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर दो y एक्सिस हैं, एक ये वाला, दिस मैं इसको कह देता हूँ A, and this y axis would be termed as B, and on the B y axis the synthesis of the metabolites is being shown. यहाँ पे एक कर्व जो है ये प्राइमरी मेटाबोलाइट के तौर पे लेबल हुई है. अगर आप इसको जरा गौर से देखें तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का ट्रेंड सिमिलर है ग्रोथ फेजेस के साथ. जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म लैग फेज में थे, प्राइमरी मेटाबोलाइट कम थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने तेजी से ग्रो करना शुरू किया लॉग फेज में, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स भी उसी ट्रेंड के साथ इंक्रीज हुए. और यहाँ पे आके जब स्टेशनरी फेज आई तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स भी स्टेशनरी कंडीशन में चले गए. ठीक है, दिस वन. Now, observe the trend of the secondary metabolites. I told you the secondary metabolites are the metabolites which form during the stress conditions. अब यहाँ पे देखें अगर आप, तो secondary metabolite की कर्व बिल्कुल स्ट्रेट रही है यहाँ पे, लेकिन जैसे ही सेल यहाँ से स्टेशनरी फेज स्टार्ट हुई है, स्टेशनरी फेज जैसे ही स्टार्ट हुई है, ये देखते हैं हम कि अचानक से सेकेंडरी मेटाबोलाइट की कर्व जो है वो ऊपर को उठ गई है. अब यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर करने की जरूरत है कि ड्यूरिंग द स्टेशनरी फेज बिकॉज न्यूट्रिएंट्स आर लिमिटेड, न्यूट्रिएंट्स खत्म हो रहे हैं, नाउ सेल विल फील द स्ट्रेस एंड ड्यूरिंग दिस स्ट्रेस सेल विल प्रोड्यूस सम मेटाबोलाइट. दैट मेटाबोलाइट्स विल हेल्प द सेल टू make it revive, to support its survival during the stress conditions. And these kind of metabolites, they are termed as secondary metabolites. Is that clear to all of you? The difference between primary and secondary metabolites and their trend with respect to the growth phases. Is that if there is any question you may ask? अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आगे चलता हूँ. अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कुछ यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ. मिसाल के तौर पे जी ये मेरे पास है, मैं इसको कह देता हूँ कि दीज आर द न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्जांपल. मतलब मैं बड़ी एक रफ सी एग्जांपल देने लगा हूँ आपको. न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पे मेरे पास एक स्ट्रेन है स्ट्रेन 1 और यहाँ पे एक स्ट्रेन है स्ट्रेन 2. दोनों क्या कर रहे थे, इन न्यूट्रिएंट्स पे ग्रो कर रहे थे. With the passage of time, these nutrients were depleted out, कम हो गए. Now, both of these type of bacteria, 1 and 2, they will feel the stress. Stress क्या है? भाई nutrients deplete हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा stress है bacterial cells के लिए. अब इन दोनों में से वही grow कर पाएगा which would suits best here, जो इस environment के साथ compatible होगा, या आप कह लें कि जो फिट टू एनवायरनमेंट होगा वो ग्रो कर सकेगा. अब यहाँ पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का रोल आएगा. मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर द मेटाबोलाइट्स व्हिच प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द स्ट्रेस कंडीशंस. अब यहाँ पे हो सकता है कि जो स्ट्रेन 1 है ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट के तौर पे कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करे. ठीक है, कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करें
जो कि इस बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया 2 को किल कर दें। अब secondary metabolites which are being produced by the bacteria 1 and they are killing the bacteria 2, और इस केस में बड़ा ही कॉमन, बड़ा क्लियर बात आपको पता चल रही है कि बैक्टीरिया 1 जो है एक्चुअली दैट इज प्रोड्यूसिंग द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स to make its survival, to survive in this environment, to make its survival more efficient by killing the competitors। क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया 2 स्ट्रेन 2 जो है एज ए कंपिटिटर है। कंपिटिटर कैसे है? न्यूट्रिएंट सेम है, न्यूट्रिएंट सेम है, कम लिमिटेड है, और इस पे 2 बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, वो बेस्ट ग्रो करेगा जो दूसरे कंपिटिटर को वाइप आउट कर देगा। So such kind of metabolites, they are termed as secondary metabolites, and secondary metabolites they help the bacteria to grow during the stress conditions। इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल है एंटीबायोटिक्स। जितने भी हम एंटीबायोटिक्स पढ़ते हैं, हम कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम लेते हैं, पेनिसिलिन फॉर एग्जांपल, किसी और का नाम लें एंटीबायोटिक्स का? Streptomycin. यस, स्ट्रेप्टोमाइसिन। एनी अदर? टेट्रासाइक्लिन। बिल्कुल ठीक है, टेट्रासाइक्लिन। ऑल ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स, they are the secondary metabolites, they produced when the cells are in stress, and these antibiotics will act as a chemical weapon for the competitors to kill them, ताकि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं बैक्टीरिया मैक्सिमली उनसे खुद फायदा उठा सकें अपने सारे के सारे कंपिटिटर्स को किल करके। सो दिस वाज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी एंड द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड देयर ट्रेंड along the different growth phases. I hope you are clear with it. If you guys have any question, आप इसको पढ़ेंगे बुक से तो आपके पास क्वेश्चन आएगा। अगर आप इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 23 या 24 प्रेस्कॉट की बुक का देख लें, उसमें एंटीबायोटिक्स एज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट बहुत डिटेल के साथ आएगा। तो आप अदर देन माय लेक्चर भी कुछ पढ़ने की कोशिश किया करें अबाउट द माइक्रोबायोलॉजी, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी, आप मेरे से क्वेश्चंस करें, मज़ा आएगा डिस्कशन का। एनीवेज सर जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है वो सेल के अपने लिए हार्मफुल नहीं होता? नहीं, यही मज़े की बात है कि सेल इज नॉट हार्म्ड बाय इट्स ओन सेकेंडरी मेटाबोलाइट, दिस इज द केमिकल वेपन अगेंस्ट द कंपिटिटर्स ओनली। ठीक है, ये एक पूरी इसके पीछे हमारे पास बायोकेमिस्ट्री ऑफ ड्रग्स एंड ड्रग रेजिस्टेंस की साइंस है पूरी। आई होप अगर आप में से कोई बायोकेमिस्ट्री के बच्चे हैं तो वो एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे अगले सेमेस्टर्स में, बायोकेमिस्ट्री ऑफ ड्रग्स एंड ड्रग रेजिस्टेंस, उसमें ये पढ़ेंगे डिटेल के साथ। एनीवेज, स्टेशनरी फेज ये हमने अभी पढ़ी है, लॉग फेज। उसके बाद हम पढ़ने लगे हैं stationary phase. So stationary phase is the phase of the inadequate supply of the sustained growth। अब यहाँ पे हमारे पास, चूंकि हम पहले बड़ी इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं कि स्टेशनरी फेज द फेज इन व्हिच न्यूट्रिएंट्स आर डिप्लीटेड, कम हो रहे हैं। अब कुछ सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाएगी, कुछ सेल्स जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाते रहेंगे वो सर्वाइव करेंगे। अब यहाँ पे जो नहीं फिट एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली दे वुड डाई। Some cells are dying while other are multiplying। स्टेशनरी फेज में ये हो रहा होगा, और नेट जो हमारे पास बन रहा है डाइंग सेल्स दे वुड बी इक्वल टू मल्टीप्लाइंग सेल्स। ठीक है, नेट हमारे पास ये है। मल्टीप्लाई वो सेल्स कर रहे होंगे विच आर एबल टू किल द कंपिटिटर्स, विच आर एबल टू सर्वाइव देयर, विच आर एबल टू यूज द लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ द एनवायरनमेंट। Is that clear? Stationary phase? Yes, sir. Question for all of you. अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ सेल्स जो हैं, मैंने बताया कि न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए हैं, स्टेशनरी फेज आ गई है। साथ ही बता रहा हूँ कि जिसकी वजह से कुछ सेल्स की डेथ हो रही है, कुछ सर्वाइव कर रहे हैं। तो अब न्यूट्रिएंट्स तो खत्म हो गए हैं, जो सर्वाइव कर रहे हैं वो फिर कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ, हाउ कैन सेल्स मल्टीप्लाई व्हेन दे हैव एग्जॉस्टेड देयर सप्लाई ऑफ द न्यूट्रिएंट्स? सो क्वेश्चन इज दैट in the stationary phase some cells are multiplying. How? Because I have told you that in the stationary phase the nutrients have been exhausted. So how, what is your logic that how and why and किस तरह से
कुछ बैक्टीरिया वो ग्रो कर रहे हैं, उनके पास न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आ रहे हैं, जबकि बाकियों के लिए न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल सर हैं। जो सेल्स डाई करके उनको एज ओके, एक लॉजिक, एनीवन एल्स? एक लॉजिक आया है जी हमारे पास कि जो सेल्स डाई कर रहे हैं वो एज ए न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। एनीवन एल्स? फ्रॉम वेयर सर द इसमें आई थिंक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हेल्प करते हैं। सेकेंडली इनकी जो सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स इट्स नॉट एग्जॉस्टेड, मतलब इट इज नॉट फिनिश्ड, थोड़ी सी लिमिटेड सप्लाई है, तो वो जो बेस्ट फिट बैक्टीरिया सेल्स हैं वो यूज कर सकते हैं। ओके, दूसरा लॉजिक अब्बास कुछ कह रहे थे? ये सर मैं भी ये कह रहा था कि जो सेल जो डाई होते हैं वो अपना कंटेंट जो होते हैं वो रिलीज करते हैं, जो मतलब एक सोर्स प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी और फ्यूल के लिए दूसरे सेल की ग्रोथ के लिए। ओके, एनीवन एल्स? कोई और बताना चाहे? मुझे जी आयशा कुछ कहना चाह रही हैं, जी बोलें। सर आई थिंक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को न्यूट्रिएंट्स इतने ही चाहिए होंगे क्योंकि वो स्ट्रेसफुल कंडीशंस में ग्रो करते हैं, तो उनको एक स्ट्रेसफुल कंडीशन में चाहिए होगी, एग्जॉस्टेड न्यूट्रिएंट्स काफी होंगे उनके लिए। आयशा आपकी बात मुझे ना समझ नहीं आई तो प्रॉपर, लेकिन जो मैं समझा हूँ मुझे लगा है कि आपका लॉजिक जो है वो खुद थोड़ा सा डामाडोल है, क्लियर नहीं है। अच्छा, मुझे लगता है आप लोगों की क्लास में जो क्लास एक्टिविटी के मैंने 5 नंबर रखने हैं ना, वो ये 5 से 7 बच्चों के आने हैं सिर्फ, बाकी सारी क्लास जो है वो खामोश बैठी। They do not bother what is we are going to discuss or not. Anyways, the logic for this question is that yes, definitely nutrients have been exhausted, have been depleted, लेकिन still nutrients present हैं इस फेज में। अब इस फेज में जो बैक्टीरिया सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो कंपिटिटर्स को किल कर रहे हैं, यानी कि अब अगर आप देखें तो कंज्यूम करने वाले किल हो रहे हैं, और इसलिए जो न्यूट्रिएंट्स अब थे अब वो काफ़ी होंगे उन सेल्स के लिए जो ग्रो कर रहे हैं, जो डिवाइड कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, ये लॉजिक भी ठीक है कि डाइंग सेल्स दे कैन बी यूज्ड एज अ न्यूट्रिएंट्स, लेकिन ये हम अभी आगे देखेंगे फेज ऑफ डेथ में या फेज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड डेथ में हम देखेंगे ये फिनोमिना, ठीक है। तो अभी स्टेशनरी फेज में यही बात ध्यान में रखिएगा कि द competitors are being eliminated, so the available nutrients now they are enough for the growing cells, and this is being happened by the use of the secondary metabolites, the microorganisms which are fittest to the environment, they are actually growing there. Okay, so we are moving next. This is actually the other phase which is termed as the death phase. अब डेथ फेज में मैंने आपको बताया था जब हमने ये पढ़ा था बैक्टीरिया एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं, एट दैट टाइम आई क्लियर दिस पॉइंट दैट whenever the microorganism they would die, they would also die exponentially but in a very bit slow rate. इस बात को मैं थोड़ा सा इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे करूँ इस बात को कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कि पहले अगर हमारे पास 2 सेल्स थे and with the passage of time they after a generation time they converted into 4 and into 8, 4, 8, 16, 32. This is actually termed as the exponential growth. अब अगर मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि ये 2 से 4 में डिवाइड हुए आफ्टर 20 मिनट्स, ठीक है, 4 से 8 में डिवाइड हुए आफ्टर 20 मिनट्स, तो दिस वाज द ग्रोथ बेसिकली। अब अगर मैं आगे चलता हूँ, अब डेथ की अगर हम बात कर रहे हैं तो अब डेथ में उलट होगा ना, 32 से सेल्स कन्वर्ट होंगे 16 में, ठीक है, 8, 4 एंड या स्पेसिफिकली 2। एक्सपोनेंशियल डेथ हो रही है, लेकिन अब क्या होगा, ये बिट स्लो रेट है। अब हो सकता है 32 से 16 में कन्वर्ट होने में दे टुक 30 मिनट्स फॉर एग्जांपल, 16 to 8 में they also took 30 minutes. They are dying exponentially but at a slow rate. This is the logic for it. उसके बाद अगली फेज जो आएगी, this is termed as the phase of the prolonged decline.
phase of prolonged decline, अगर मैं आपको दोबारा से वही दिखा सकूं, या दिस वन, phase of prolonged decline. इस फेज में डेथ होने के बाद, now what will happen, all of the cells they will not die, some of the cells they would be present in this phase and वो cells survive करेंगे which are fittest to the environment. अब यहाँ पे वो लॉजिक आएगा कि ये अब चूंकि न्यूट्रिएंट्स इस फेज तक तो बिल्कुल न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो ये फिर कैसे सर्वाइव करेंगे, नाउ दे वुड यूज द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द डाइंग सेल्स. डाइंग सेल्स भी चूंकि उसी एनवायरनमेंट के अंदर, उसी मीडियम के अंदर किल हो रहे हैं, उनके डेब्रिस को एज ए न्यूट्रिएंट्स यूज करते हुए एनवायरनमेंट में जो फिटेस्ट सेल्स होंगे दे वुड ग्रो, एंड दिस फेज इज कॉल्ड फेज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड डिक्लाइन. अब जब तक इसके अंदर डाइंग सेल्स के न्यूट्रिएंट्स मौजूद होंगे ये फेज एग्जिस्ट करेगी. ओके, सो दीज वर द डिफरेंट फेजेस ऑफ द ग्रोथ कर्व. हमने स्टार्ट किया लैग, लॉग, स्टेशनरी, डेथ एंड प्रोलॉन्ग्ड डिक्लाइन फेज की तरफ हमने मूव किया. यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन ख़वातीनो हज़रात? नो क्वेश्चन? ओके, सो जी 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 सर ये फिटर सेल का बता दें. कौन? फिटर सेल जो होते हैं. फिटर नहीं है, फिटेस्ट है. नो सर, फिटर भी है, FITTER. ये डिग्री है, फिट, फिटर, फिटेस्ट यहाँ पे इसने लिखा हुआ है, अदरवाइज फिट ही होता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि इसको बताने के लिए कि यू कैन से दैट द मोर फिट एंड द मोस्ट फिट. ओके, एम आई क्लियर? ओके सर. नहीं मतलब बात बनी है ज़हन में या नहीं बनी? अगर नहीं बनी तो यू कैन जस्ट लेट मी नो. यस सर, मगर यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ था वो ऐसा लिखा हुआ है कि while a few fitter cells more able to cope with the deteriorating environmental condition are multiplying. यस, यहाँ पे यही है मोस्ट फिट. अब मोर फिट समझ लें, ठीक है. ये जो मैंने यहाँ पे वर्ड लिख दिया है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, दिस आई ट्राई टू यूज द थर्ड डिग्री टू मेंशन इट दैट द फिटेस्ट टू द एनवायरनमेंट वुड सर्वाइव, लेकिन उसने सेकंड डिग्री का यूज किया है फिटर. ठीक है सर जी. जी जी सर ये कौन सी बेस पे फिटेस्ट होंगे, किस डिग्री पे ये रिलाय करेंगे, मतलब इनमें कौन कौन सी चीजें होंगी जो इनको फिटेस्ट ये डिग्री रिलाय करेंगे? या बेसिकली इस केस में चूंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोकैरियोट्स, इस केस में हमने चूंकि अभी तक सेकेंडरी मेटाबोलाइट का पढ़ा है, सो वी वुड एक तो यह है कि इसमें बहुत सारी हमारे पास जेनेटिक वेरिएशंस इन्वॉल्व हैं. जब हम इसको देखते हैं कि बहुत सारे सेल्स जो हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जीन्स एक्वायर करते हैं थ्रू द कॉन्जुगेशन प्रोसेसेस, वन थिंग, जिससे वो जेनेटिक मेकअप चेंज करते हैं. कुछ सेल्स जो हैं वो उनके पास अगर कोई एक्स्ट्रा जीन या ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इवन कोई एक्सटर्नल जीन वो अपटेक करेंगे तो नाउ देयर जेनेटिक मेकअप दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर कंपेनियंस. एक बात. दूसरी बात यह है कि इसमें अगर मल्टीपल स्पीशीज इन्वॉल्व हैं तो एक स्पीशीज ऐसी हो सकती हैं जो कि कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करती हैं जो कि दूसरी स्पीशीज को किल कर रही हैं. तो फिर इस बेस पे भी हम कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग स्पीशीज जो हैं दे आर फिट टू द एनवायरनमेंट बिकॉज दे नो हाउ टू किल द enemies, they know how to kill the competitors, they know how to preserve the nutrients for them. तो इस बेस पे भी हम कह सकते हैं. इसके अलावा ये भी हो सकता है कि किसी एक स्पीशी ने कोई ऐसी जीन एक्वायर कर ली है एनवायरनमेंट से जो कि उनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को डेवलप कर रही है. अब क्या होगा कि जो उनके कंपिटिटर एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करके इनको किल करने की कोशिश करेंगे, इनके पास जीन मौजूद है जो कि एज ए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है. नाउ दे वुड नॉट बी किल्ड. तो अब हम कहेंगे कि ये फिट है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल पॉइंट्स हो सकते हैं. हम जो कि इस माइक्रोबायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिस्कस नहीं कर पाएंगे. अगर कभी हमने माइक्रोबियल जेनेटिक्स या हमने बायोकेमिस्ट्री ड्रग्स एंड रेजिस्टेंस या माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी का इवन कोई पोर्शन पढ़ा तो देन वी वुड ट्राई टू, नहीं बल्कि माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं आएगा. ये दो जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको ऑलरेडी बताए इसके अंदर हम इसकी डिस्कशन कर सकेंगे. ओके, सो वी मूव नेक्स्ट हियर. And these are some environmental factors which can influence the growth, and which can influence the microbial growth. Because you are familiar with it that whenever we have to grow the microorganisms into the environment, we need to grow
we need to provide the suitable conditions, and these suitable conditions they would be the nutrients के हमने example पढ़ लिया पीछे के nutrients के base पे किस तरह से जब nutrients कम होते हैं ज़्यादा होते हैं तो क्या trend आता है, हमने growth phases पढ़ी हैं। इसके साथ साथ जो physical conditions या environmental factors required हैं, environmental factors यानी कि which form the environment, उसमें temperature, oxygen, pH and the water availability, they are most important. So we have to provide excuse me so we have to provide the suitable and the optimum conditions which are required for the growth of the microorganisms. And the first of them is temperature, then oxygen, pH, water availability, both, all of them, they are important. So let's start with the temperature. And temperature point of view से अगर हम बात करें थोड़ी सी, you are familiar with it that bacterial enzymatic machinery required as an optimum temperature for the proper function, for the proper growth. So depending upon the temperature requirements, we can categorize the microorganisms into 5 basic categories, starting from the psychrophiles, psychotrophs, mesophiles, thermophiles, and the hyperthermophiles. अगर आप यहाँ पे देखें इस ग्राफ के अंदर, तो दिस ग्राफ इज एक्चुअली शोइंग द टेम्परेचर ऑन द एक्स एक्सिस एंड द ग्रोथ रेट ऑन द वाई एक्सिस। तो जो साइक्रोफाइल्स हैं उनका जो टेम्परेचर रेंज अगर आप देखें तो वो 0 से बिलो पे स्टार्ट होते हैं और ग्रो कर सकते हैं कोई 18-15 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन उनकी जो मैक्सिमम ग्रोथ आती है, मैक्सिमम जो ग्रोथ आती है वो यहाँ पे आती है, यहाँ पे अराउंड 5 to 10 इस केस में मैक्सिमम ग्रोथ आती है, ठीक है। रेंज उनकी है माइनस से लेके कोई 18-20 तक, लेकिन मैक्सिमम ग्रोथ जो आएगी वो आएगी 5-10 के आसपास। इसी तरह से साइक्रोट्रॉफ्स अगर आप देखते हैं तो उनकी रेंज देखें काफ़ी ब्रॉड है, लेकिन मैक्सिमम जो ग्रोथ आ रही है, ये कर्व आपको दिखा रही है कि मैक्सिमम ग्रोथ जो है वो यहाँ पे करके आ रही है, ठीक है, हियर एट दिस पॉइंट। तो दीज आर द एक्चुअली टेम्परेचर कंडीशन। जहाँ पे हम थोड़ी सी उसकी बात करते हैं, साइक्रोफाइल्स देयर ग्रोथ range is from -5 to 15 degree centigrade. Cyclotroph की जो growth range है, it is from 20 degree centigrade to 30 degree centigrade, but they grow as well at the refrigeration temperature. इनकी growth जो है refrigeration temperature जो है approximately that is 4 degree centigrade, 4 to 5 degree centigrade. This is the refrigeration temperature. तो range 20 से 30 है, लेकिन ये बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी, ठीक है। इसके अलावा मेसोफाइल्स, mesophiles they are the bacteria which require 25 to 45 degree centigrade, but their optimum growth is at 37 degree centigrade. Thermophiles, the temperature loving 45 degree centigrade to 70 degree centigrade. 70 degree centigrade is a very high temperature, and there is other group, this is hyperthermophile, and it requires very high temperature above 70 degree centigrade, and even we can see the growth above 100 degree centigrade hyperthermophiles। और इस केस में हमारे पास ज़्यादातर आर्किया बैक्टीरिया जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। आर्किया बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरियल स्पीशीज भी हैं, लेकिन आर्किया बैक्टीरिया आर आल्सो प्रेजेंट इन दिस ग्रुप, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम आगे मूव करते हैं तो मेरा आप लोगों के लिए एक सवाल है कि कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो तो ग्रो कर रहे हैं माइनस पे, कुछ 20 पे। अब जो माइनस वाले हैं वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्रो नहीं कर पाएंगे। The question is that why can some prokaryotes withstand very high temperature but some cannot? कुछ तो बहुत हाई टेम्परेचर बियर कर रहे हैं जैसा कि हाइपरथर्मोफाइल्स हैं, कुछ नहीं कर पाते। ऐसा क्यों है, आप लोगों को क्या लगता है? What is the reason? सर जो इस तरह से कर सकते हैं उनके अंदर सर्टेन अडैप्टेशंस होंगी, जैसे उनके अंदर कैप्सुलेट्स वगैरह होंगी, या इस तरह से उन्होंने एक बायोफिल्म वगैरह वो बना लेते होंगे जिसकी वजह से उनका सर्वाइवल ज़्यादा अच्छा हो जाता है उस टेम्परेचर पे। Okay, anyone else? सर आई थिंक उनकी एंजाइमेटिक मशीनरी इस तरह की होती है कि वो हायर टेम्परेचर पे वर्क करती है, और सेकेंडली ये कि बायोफिल्म्स जो है वो उनको टॉलरेंस जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, कोई और? Anyone else? सर यही लॉजिक आ रही है कि मतलब उनकी जेनेटिक ऑर्डर कुछ इस तरह का होगा, स्लाइमी कैप्सूल्स वगैरह,
इस क्लास में जो बच्चे बोलते हैं ना, उनका नाम है जी अब्बास, सारा, अफजल, अरीबा, कभी कभी कोई आयशा, या कभी कभी आकिफ, बुरहान, बस बाकी जो हैं वो गम सम कुछ ज़्यादा पता नहीं। एनीवेज ओके, अच्छा, यस यू आर राइट, दिस इज द लॉजिक फॉर इट। And there are some heat shock proteins in addition to the normal protein setup. They may be present. Actually, that would help the bacteria to withstand in the high temperature. Or is point of view say we can say that some of the bacteria, they can bear the high temperature, but most of them they do not, and so that's why different species they are present in mesophilic conditions as well as some in the cyclotrophic conditions. अब mesophilic conditions में वो बैक्टीरिया ग्रो कर, जितने भी हमारे ह्यूमन इन्फेक्शियस बैक्टीरिया हैं ना, दे आर mesophilic, most of them they are mesophilic. और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि रेफ्रिजरेटर में पड़ी हुई चीज़ों को भी स्पॉइल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया के अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में फंगस भी आएगी, फ्रिज में पड़े हुई चीज़ों में फंगस भी लग जाती है, बिकॉज फंगस दैट इज साइक्रोफिलिक, दैट वुड ग्रो फ्रॉम -5 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड। साइक्लोट्रॉफिक के बारे में भी हमें पता है कि दे कैन ग्रो एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। सो दिस वाज अबाउट इट। सो दिस टेम्परेचर एंड फूड प्रिजर्वेशन जो है, इसका बड़ा लिंक है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, बिकॉज इन फूड प्रिजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू we have to minimize the growth of the microorganisms. We have to enhance the shelf life. जैसा कि हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी पोटैटो सैलड के केस में, फूड प्रिजर्वेशन, अगर वो पोटैटो सैलड को रेफ्रिजरेटर में रख देते तो 4 घंटे गुजरने के बाद भी उनको फूड पॉइजनिंग ना होती। एंड द रीज़न इज़ दैट जो फूड प्रिजर्वेशन अगर हम लो टेम्परेचर पे करते हैं तो उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो मिनिमाइज हो जाती है, स्लो हो जाती है। इसी तरह से an other technique that is very common in the preservation methods, that is the pasteurization. We do the pasteurization for the milk products, dairy products. Milk के लिए हम pasteurization करते हैं, that is the heating of milk at 70 degrees centigrade for 15 seconds. And this is actually the type in which type of the preservation in which we are minimizing or reducing the number of the spoilage bacteria. So that's why जो milk है उसके spoilage को हम reduce कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ ये बहुत सारी जो टेम्परेचर बेस्ड कैटेगरीज हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, इनका डिजीज पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। फॉर एग्जांपल देयर इज अ डिजीज व्हिच इज कॉल्ड हैंसन्स डिजीज और द लेप्रोसी। हैंसन्स डिजीज, ये लेप्रोसी क्या होती है? लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्री, चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था। लेप्रोसी कौन सी डिजीज है जी, कोई जानता है? चलें, हैंसन डिजीज जो है this is also called leprosy and this is caused normally caused by the mycobacterium leprae। और मैंने चैप्टर 1 में आपको इसका एक वो भी दिखाया था, एक पेशेंट की पिक्चर भी दिखाई थी। अब याद करके बताएं जो व्हाट इज लेप्रोसी, क्या इसके सिम्टम्स हो सकते हैं? मोस्टली जिसको हम कोहड़ की बीमारी कहते हैं। Yes, you are right. So ये जो mycobacterium leprosy, so mycobacterium leprae है जो leprosy का causative agent है, it starts in the coolest region of the body, जहाँ पे टेम्परेचर कम है, ये वहाँ से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल एयर बड्स, ये जो एयर जो हमारे एयर लॉब्स हैं, द फिंगर्स ऑफ द हैंड्स एंड द फीट, यहाँ पे जो कि टेम्परेचर बॉडी पार्ट्स बाकी बॉडी पार्ट्स की निस्बत कम होता है, इस वजह से ये यहाँ पे ग्रो करता है पहले स्टार्ट में, और उसके बाद ये पूरी बॉडी पे फैलता है लेप्रोसी। इसके साथ साथ एक और डिजीज है, दिस इज द साइफिलिस एंड द कॉजेटिव एजेंट ऑफ साइफिलिस, ये जो हमारे पास ग्रो करता है, ये थोड़ा सा हाई टेम्परेचर रीजन्स में ग्रो करता है। फॉर एग्जांपल
लिप्स, टंग, थ्रॉट रीजन, नेक रीजन में टेम्परेचर चूँकि ज़्यादा होता है। इसके अलावा जेनेटिलिया में टेम्परेचर जो है एज कम्पेयर टू द एयर लोब्स एंड हैंड्स एंड फीट ज़्यादा है। लिप्स पे, टंग पे टेम्परेचर ज़्यादा है। तो साइफिलिस की जो डिजीज़ है, द कॉजेटिव एजेंट दैट यूज्ड टू ग्रो इन दैट रीजन्स, और लेकिन ये एक हद तक, अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, मतलब इसकी एक लिमिट है, अगर उस लिमिट से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो साइफिलिस का कॉजेटिव एजेंट जो है that would die. Sorry, syphilis is the name of bacteria. Yes, this is the name of bacteria. This is not the disease. This is the name of bacteria, and this used to cause a syphilisis. ठीक है, syphilisis. तो अब इसको बहुत कॉमन मेथड जो हम यूज़ करते रहे हैं इसको किल करने का, इस केस में वो ये था कि पेशेंट को, जिसको ये डिजीज़ हो जाती है, जिसको साइफिलिस का इन्फेक्शन हो जाता था, उसको हम डेलिब्रेटली फीवर कॉज करवाते थे। पेशेंट को फीवर कॉज करवा जाता था जिससे पूरी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता था, और उसके रिजल्ट में उसके रिजल्ट में साइफिलिस की डेथ, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे ये सर्वाइव नहीं कर पाता। ग्रो करता है रिलेटिवली हाई टेम्परेचर पे, जैसा कि जेनेटिलिया, लिप्स, टंग, थ्रॉट पे, लेकिन इसकी क्योर करने के लिए पिछले काफ़ी सालों तक ये टेक्निक हम यूज़ करते रहे कि पेशेंट्स को डेलिब्रेटली फीवर करवाते थे, जिसकी वजह से इसकी डेथ हो जाती थी। ख़ासतौर पर मलेरिया कॉज करवाया जाता था, क्योंकि मलेरिया को बाद में ठीक करना आसान था, या टाइफाइड कॉज करवाया जाता था जिसमें टेम्परेचर हो जाता था बॉडी में। तो दिस इज एक्चुअली द रेंजेस ऑफ टेम्परेचर दैट अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स and the different classes based on the temperature. They may be important in a food preservation point of view, as well as with respect to the disease causing potential of a bacteria. Up to this point, if you guys have any questions, you may ask. Okay, so depending upon the oxygen availability, we can also categorize the microorganisms into different groups. And depending upon it, we can say that the microorganisms, they are obligate aerobes. Obligate aerobes, actually, they require oxygen. They cannot grow without the oxygen. And number two are the obligate anaerobes. They cannot grow in the presence of oxygen. So दोनों एक दूसरे के opposite हैं. इसके अलावा facultative anaerobes हैं. They grow best if oxygen is present, but they can grow without it. Facultative, ठीक है? इसको अपॉर्चुनिस्टिक भी कह सकते हैं, यानी कि दे कैन ग्रो विदाउट द ऑक्सीजन, लेकिन अगर ऑक्सीजन इन्हें मिल जाए तो ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। माइक्रोएरोफिलिक, दे रिक्वायर द ऑक्सीजन फॉर द ग्रोथ, लेकिन कम क्वांटिटी में ऑक्सीजन चाहिए इन्हें, ज़्यादा क्वांटिटी इनके लिए इनहिबिटरी हो सकती है। इसके अलावा एरोटॉलरेंट्स जो हैं, दे आर इनडिफरेंट ऑक्सीजन, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में मौजूद है नहीं है, वो एक ही पेस से ग्रो करेंगे। ठीक है, सो ऑक्सीजन चाहिए क्यों होती है सेल को? फॉर द एनर्जी कन्वर्टिंग मैकेनिज्म्स में रिक्वायर्ड है, मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर्ड है, और इसके अलावा ऑक्सीजन जो है एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के तौर पे काम करती है मेटाबॉलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें। तो बैक्टीरियल स्ट्रेन्स जो हैं, बहुत सारे इसमें स्ट्रेन्स को हम 5 ग्रुप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। कुछ वो जिन्हें डेफिनेटली ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, एरोबिक, या इनको हम कहेंगे ऑब्लिगेट एरोब्स। कुछ ऐसे हैं जिनको बिल्कुल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर सकते, ऑब्लिगेट एनारोब्स। कुछ ऐसे हैं फैकल्टेटिव, दे कैन ग्रो विदाउट ऑक्सीजन, बट इफ द ऑक्सीजन इज प्रेजेंट दे वुड ग्रो बेस्ट। माइक्रोएरोफिलिक, they require very small amount of oxygen, and aerotolerant, they are indifferent to oxygen. They do not mind either oxygen is present or not. So this is actually an experiment, and this experiment is actually to mention that how we can estimate that the given bacteria that is that requires oxygen or not, because if you are with some unknown bacteria, आपके पास कोई unknown sample है, and you have to find it out that either it requires oxygen or not,
So what we'll do, you have to perform an experiment, and this experiment is termed as shake tube method. This is called shake tube method. हम करेंगे क्या? We would prepare an agar, और agar को हम डाल देंगे टेस्ट ट्यूब में. agar को नॉर्मली हम पेट्री प्लेट में डालते हैं, लेकिन हम agar को डाल देंगे टेस्ट ट्यूब में, और उसमें अपना जो अननोन सैंपल है, we would add the unknown sample into the medium, और ऊपर से टेस्ट ट्यूब को बंद करके हम उसको अच्छी तरह से शेक कर देंगे. आफ्टर शेकिंग टेस्ट ट्यूब को हम रखेंगे ताकि जो एगर है वो सॉलिडिफाई हो जाए. आफ्टर सॉलिडिफिकेशन 24 आवर्स के इंक्यूबेशन के बाद अगर बैक्टीरियल ग्रोथ अपर लेयर्स में आती है, यहाँ पे सिर्फ इस लेयर में, तो इसका मतलब है कि बैक्टीरिया दे आर ऑब्लिगेट एरोब्स बिकॉज दे ग्रो, they have shown the growth in the upper layers where the oxygen was present. अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ बिल्कुल लोअर लेयर्स में आती है, तो इसका मतलब क्या है कि दे आर ऑब्लिगेट एनारोब्स. उन लेयर्स में इसकी ग्रोथ आई है जहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी. अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ आती है इन सेंटर, तो दे आर माइक्रो एरोफिलिक. इट मींस दैट दे हैव शोन द ग्रोथ वेयर द ऑक्सीजन वाज प्रेजेंट इन minute quantity in a low concentration. So if the bacterial growth is present throughout the medium or throughout the test tube, it means that the bacteria, they are the facultative. और इसमें अगर हम देखते हैं तो अपर लेयर्स में ग्रोथ अच्छी है, ज़्यादा है, और लोअर लेयर्स में ग्रोथ कम है. यहाँ पर अगर आप देखें तो इस टेस्ट ट्यूब में अपर लेयर में ज़रा रेड डॉट्स थोड़े हैवी हैं और यहाँ पे रेड डॉट्स थोड़े कम. इसका मतलब है कि अपर लेयर्स में ग्रोथ बेहतर है, अच्छी है. It means that they are facultative. They showed the maximum growth where the oxygen was present, but they showed the growth where the oxygen was not present. Growth वहाँ पे भी आई है. इसके अलावा जो एरो टॉलरेंट हैं, उनकी पूरी टेस्ट ट्यूब में एक ही जैसी ग्रोथ होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है नहीं है. So this is actually a shake tube method. अब सवाल ये है कि ऐसी क्या वजह है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो कर सकते हैं, कुछ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर सकते. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? कोई आप में से बता सकता है कि व्हाई देयर आर सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड व्हिच इवन कैन नॉट? व्हाट कुड बी द रीजन? व्हाट डू यू थिंक? What could be the reason? Sir, it could be due to the fact that some bacteria might require like fermentation, and the products from fermentation, i.e. anaerobic respiration, for their growth. मतलब उनको उसके products ज़्यादा suitable होंगे. Okay, one viewpoint. Anyone else? सर अब जैसे बैक्टीरिया हर जगह होते, तो कुछ बैक्टीरिया क्या कहते हैं ऐसी जगह पे भी ग्रो करते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती होगी या बिल्कुल मिनिमम होती होगी, तो उस वजह से वो इस तरह से करते हैं. जैसे रॉक्स वगैरह के नीचे होते हैं बैक्टीरिया वगैरह, तो उधर भी बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, तो ये हो सकता है. हाँ, मेरा सवाल ये है कि दोनों में फिर फ़र्क क्या है? ऐसा क्यों होता है कि कुछ एब्सेंस में ग्रो कर रहे हैं, कुछ प्रेजेंस में ग्रो कर रहा है ऑक्सीजन की? ये फर्क वहाँ पे तो फिर सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट आ जाएगा ना. जब मतलब उनका इन्वायरमेंट ऐसा, जब फर्स्ट ग्रोथ हुई थी बैक्टीरिया की, वहाँ पे इन्वायरमेंट ऐसा था कि ऑक्सीजन नहीं थी. फिर आहिस्ता आहिस्ता बैक्टीरिया ने वो मशीनरी अडॉप्ट की. जब वो ऑक्सीजन में आना शुरू हुआ, तो वो वाले जो बैक्टीरिया हैं वो ऑक्सीजन के बगैर ग्रो कर सकते हैं. तो वहाँ से जो उनकी मतलब वो आगे से आए, वो ऑक्सीजन के बगैर ग्रो कर सकते थे, कि मतलब वो फूड की ब्रेकडाउन जो है वो ऑक्सीजन के बगैर कर रहे हैं, इसलिए वो मतलब हो सकता है कि इनिशियली आपको पॉइंट वैलिड हो, बट हम अब पीछे गुजरे हुए एवोल्यूशन के स्टेप्स की बात नहीं कर रहे, हम अभी राइट नाउ बात कर रहे हैं. दो बैक्टीरिया हैं आपके पास, एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करता है, एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डेथ हो जाती है एक की. आपको लगता क्या है कि ऑक्सीजन में ऐसा क्या है कि कुछ, या बैक्टीरिया में ऐसा क्या है कि कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो कर रहे हैं, दूसरे को आपने ऑक्सीजन के साथ एक्सपोज किया तो दैट वुड डाई? तो ये मेरा सवाल है.